Okay, Bismillah Rahman Rahim. While I was climbing up the stairs, I found these two things present on the stairs, and they are fresh, which mean it was thrown either by me or by one of you. ये बेटा जरा बाहर फेंका. This we have to learn very quickly. Time is very short. Anyway, so by now you know me. And this is what we are going to talk. How does our brain process the information? In other words, what we're going to learn is learning how to learn. When we were doing our training as medical educationists, one of our teachers, and a very important and very prominent medical educationist of this country, Professor Muaddad Rana, he just said that when a first year student comes in a medical college, before teaching them anatomy, physiology, biochemistry, we must discuss with them how our brain assimilate the informations. It's a boring subject, it's a tiring subject, but you know, since yesterday you are enjoying it, so this 1.5 hours will be a boring hour. But you have to bear with me. What we are discussing now is how our brain works. In other words, when we say learning, what is going on in our head? That is what we're gonna learn. See, the most important thing related to this learning is memory. What do you think memory is? याददाश्त. Memory क्या होती है? यानी क्या? Retention of information over the time is called memory. और अगर आप I'll be bilingual, I'll be talking Urdu. Is there anyone who does not understand Urdu? Any foreigners? Or no. देखें, अगर हम इंसानी ज़िंदगी को देखें ना, इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो उसका इंसान पना है, that is all related to memory. If you take the memory of the learned memory, then there is no difference between an animal and a human being. And in fact, animal is more equipped to look after itself as compared to a human. When a goat gives birth to a child, after about 4 hours, that child starts running. But a human child requires at least 2.5 years to stand on his feet. And then he walks with a waddling gait. It takes around 7 years for the conscious brain to start acting. In other words, what makes a human being different from an animal is just the memory. If you take the memory chip off from the head, a person becomes worse than an animal. So memory is the main thing which makes us intelligent. A memory is which is making us Musliman. A memory is which making us doctor. A memory is making us father of someone, child of someone, citizen of a country, believer of a faith. It's only the memory. Doctor, engineer, it's a memory. So memory is the main. In other words, we are humans because we have got a memory, right? Okay. Now, memory, in order to understand, have got 3 different phases. I'm just explaining it for the purpose of explaining as a separate entity, but they are actually mixed together. ये अलग से partitions नहीं हैं, but in order to understand it, just presume that it has got 3 partitions. The first memory is called sensory memory. The second is called working memory or a short-term memory. And the third one is called long-term memory. जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? हम इंसान हैं इसलिए कि हमारे अंदर एक मेमोरी है. प्रोफेसर मुनीर अजहर साहब हैं, इनको पता है कि ये किसके बाप हैं, किसके बेटे हैं, किस मज़हब से इनका ताल्लुक़ है, किस इलाके के रहने वाले हैं, इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्या, ये सब चीज़ें सिर्फ मेमोरी के, ये मेमोरी है which is making him unique from Professor Mustansir and from Professor Niaz. This is just memory, right? And this memory in our head is in 3 parts:
sensory memory, short term or working memory, and a long term memory. Now we'll just take them one by one. I'll make it very simple. If you don't understand, raise your hand, right? Sensory memory is ability to look at an item and remember what it looked like with just a second of observation and memorization. आप सड़क पे जा रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, एक बोर्ड था, एक अचानक रक्षा आ गया, आप पीछे हो गए, अचानक एक जानने वाला मिल गया, आपने सलाम किया, अचानक आपने देखा एक दुकान पे कुछ चीज़ बिक रही है, ये सारा कुछ जो आपके पास आ रहा है, इट इज़ इन सेंसरी मेमोरी. एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग, वेन एवर यू आर लिसनिंग अ लेक्चर, when you are witnessing an operation or examining a patient, whatever you are doing, it immediately comes into the sensory memory. And this is the stimulus. Stimulus किस तरह का हो सकता है? वॉइस हो सकती है, लाइट हो सकती है, और टेक्टाइल हो सकती है, टेक्टाइल हो सकता है, और जस्ट एक दिमाग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है. तो ये सारे स्टिमुलस हैं, सारे स्टिमुलस हैं. अब एक आदमी आपकी तरफ देख रहा है, अब एक आदमी मुंह से कोई डिफरेंट तो नहीं है ना सारा, लेकिन आपके दिमाग ने जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाया है बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द लिप्स एंड द ब्रॉडनिंग ऑफ द प्यूपल, तो वो भी एक स्टिमुलस है. तो जब भी एक स्टिमुलस हमारे दिमाग में आता है तो मेमोरी के अंदर जिस फॉर्म में आता है उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी. और आप हैरान होंगे, वेदर इट इज टेक्टाइल, वेदर इट इज ऑडिटरी, whatever it is, our sensory memory can only perceive it either as a visual thing or an auditory thing. Even tactile sensation को भी, when it goes to the neurons, actually it is converted into either an auditory or a visual. And you will be surprised to know that 99.9% of sensory memory is just wasted in few seconds. आप भी सड़क से गुजर के गए हैं, वापस आए हैं, उसमें से 99% चीजें आपको याद नहीं होंगी. They will be lost. And the retention time for a visual thing is 1.5 seconds, and for auditory is 2 to 4 seconds. लिहाजा जब आप किताब पढ़ रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिस रास्ते से वो सब कुछ गुजर के जाना है, उस रास्ते गरीब की औकात सिर्फ 2 सेकंड और 3 से 4 सेकंड, उसके बाद वो लॉस्ट हो जाएगा. और लेकिन एक तरीका है जिससे आप उसको चिपका लेंगे, और वो आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी पढ़ाई में आपको बड़ी मदद मिलेगी. वो ये है कि ये बात मुकम्मल के जब ये आ रहा होता है ना, जब सेंसरी स्टिमुलस आ रहा होता है, तो ये सेंसरी स्टिमुलस कोई मीनिंग नहीं क्रिएट करता. आवर माइंड डज नॉट मेक एनी मीनिंग आउट ऑफ इट, इट ओनली रिकॉग्नाइजेज द पैटर्न. Brain only recognizes the pattern. However, pattern is converted into meaning only when a signal from long-term memory joins it. I am just walking, I see 10 people going, I will not register it, but suddenly I saw him, a signal from my long-term memory will come that he is my childhood buddy, Mustansir, oh, ki haal hai, blah, 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 and then suddenly that stimulus becomes important for me. But if link from long term memory will not come, this will just be gone. Now for teachers and medical and students, this thing is very important. Whatever you are studying, whatever you are looking at, if it has got a prior relationship with your memory, it will stick. So for example, someone is going to teach you radial artery, and your teacher has already told you a night before that tomorrow we will be talking about radial artery. I'll tell you the other things later, but please remember when you hold your hand here, जिसको उर्दू में नब्ज कहते हैं, वो radial artery होती है. That's it. And next day when she starts teaching you about radial artery, the moment word radial artery will be uttered by Dr. Sabahat,
A signal will come from the long term memory. Yes, I know what radial artery is. ये नब्ज है जो हाथ पकड़ के देखते हैं. And suddenly that thing will stick there. समझ में आई बात? लिहाजा पहला जो टेक होम मैसेज है, जो कुछ आपने करना है उसका प्रायर नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें. और टीचर्स को भी हम ये बात करते हैं, ये सारा टीचर्स के साथ भी डिस्कस कई दफा कर चुके हैं कि कोई चीज पहली दफा बच्चों को ना पता चले. ये ना हो कि आप कैटरेक्ट पढ़ा रही हैं तो पहली दफा कैटरेक्ट, अच्छा मैडम क्या कैटरेक्ट, CATRI ना, उससे पहले उनको मोतिया आंखें, याद है आपके नाना की आंखें हो गई थी तो मोतिया, वो एटलीस्ट दिस बेसिक नॉलेज विल बी देयर, देन immediately a link will come from long term memory and now this will not be lost. बॉडी कहेगी इसको पकड़ना है, यानी माइंड कहेगा इसको पकड़ना है. और जो दूसरी चीज है, एक और चीज, तो इन अदर वर्ड्स जो दूसरी चीज है ना वो मैं बताता हूं. तो सेंसरी, आपको समझ में आ गई बात? तो इन सेंसरी मेमोरी चीजों को जाया हो जाएंगी आपकी. अब जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने लगें तो इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा. अगर आपका प्रायर कोई उसके साथ लिंक होगा तो रुक जाएगी, अदरवाइज वो स्लिप हो जाएगी. अच्छा, यहां से मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं. ठहरिए, मार्कर है हमारे पास, यहां चौक. थैंक यू. This is our brain, a bottle. Now this opening of the bottle is the sensory memory. This is the sensory memory. And if you pour lot of water in a bottle from all sides, most of it will not go into the bottle. The only one which has got a link with the long term memory, वो उसके साथ चला जाएगा. और नया नॉलेज उस वक्त रुकेगा, वो मैं आगे बताऊंगा कि उसकी भी एक टेक्निक है. उस टेक्निक को, उसको कहते हैं अटेंशन. इफ यू आर अटेंटिव टुवर्ड इट, टेक्निकली स्पीकिंग अटेंशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं. ओके, नाउ वंस दिस गोज, यू नो, इट क्रॉसेस द सेंसरी मेमोरी, इट गोज इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी. नाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज वन वेयर पैटर्न्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू सम मीनिंग. यू गेट सम मीनिंग ऑफ इट. मुझे एक बंदा नजर आया था, ये सेंसरी मेमोरी में था, लॉन्ग टर्म मेमोरी से एक लिंक आया तो मुझे पता लगा ये तो मुस्तनसर महमूद साहब है. यानी जो ये वाली समझ आने वाली बात है ना, ये समझ आने वाली बात शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर शुरू. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां का भी जो रिटेंशन टाइम है वो है 30 सेकेंड. 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के अंदर अंदर अगर आपने उसको संभाल लिया तो वो स्लिप होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. अगर नहीं तो ये भी जाया हो जाएगा. ये बात आपको समझ में आ गई? 30 सेकेंड. और दूसरी बात यह है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम है. द कैपेसिटी ऑफ दिस नेक इज वेरी स्मॉल. दे आर इन द फॉर्म ऑफ चंक्स. एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों के साथ, एनिमल के साथ रिपीट किया गया, जिसमें उनको नंबर बताया गया 5, 18, 19, 27, 26, 22, इस तरह नंबर चार्ट्स में लिखे गए और उनको एक खास टाइम के लिए दिखाया और उनको कहा कि इनको आप रिटेन करें. तो यह पता चला कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है 5 to 9 चंक्स, 5 to 9 यूनिट्स. यानी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो 5 या 9, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा माइंड कितना ट्रेंड है, हम लायक हैं कि कम लायक हैं. तो इस उसमें 5 से 9 की कैपेसिटी है. अच्छा, हमारा ये ख्याल है कि अगर आप 5 उनको चंक, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, यहां से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. इफ वी हैव गॉट 5 यूनिट्स वी विल रिमेंबर इट एंड वी विल बी एबल टू पुश इट इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. इफ इट बी 6, थोड़ा जोर लगाएं तो ठीक, 9 तो ठीक. अगर हम उसको 15 कर दें तो हमारा यह ख्याल है कि कोई से 5 जहन में आ जाएंगे, बट द स्टडीज शोड कि फिर कोई भी नहीं आएगा. दैट इज समथिंग वेरी अमेजिंग. इफ, और ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये याद रखने की बात है, इफ यू ओवरलोड द मेमोरी तो ये नहीं होगा कि उसमें से कुछ याद रह जाएगा,
और कुछ नहीं रहेगा, उसमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा, बिकॉज आवर माइंड विल बिकम शट। अगर टीचर ये सोच के आता है ना, आज मैंने 300 स्लाइडें पढ़ा के जानी है और सारा का सारा मैंने डायबिटीज जो है ना, वो एक एक चीज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसकी हर चीज बता के जानी है, प्लीज ट्रस्ट, none will go in the heads, because the moment we are overloading it, our mind will become shut. So only 5 to 9 chunks can go at one time from this bottleneck. अच्छा, इसको हम कैसे ये बड़ी जरूरी बात है, कैसे फैसिलिटेट करते हैं? रिहर्सल. The moment it passes through this, incidentally कोई लॉन्ग टर्म से लिंक आ गया, या अटेंशन थी, नई चीज थी, बट यू आर अटेंटिव. अटेंशन इज डिफाइंड एज द कॉग्निटिव एनर्जी टू असिमिलेट द इंफॉर्मेशन. अटेंशन का टेक्निकल वर्ड है, इट्स द कॉग्निटिव एनर्जी. कॉग्निटिव मतलब दिमाग की, इट्स अ लर्निंग से, नॉलेज से, इट्स अ कॉग्निटिव एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू असिमिलेट द सिग्नल्स इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इज कॉल्ड अटेंशन. अच्छा, तो अटेंशन और लॉन्ग टर्म से तो किस्मत से हमने उसको यहां डाल दिया. यहां उसको रिटेन करने के लिए हमें रिहर्सल चाहिए, या रिहर्सल चाहिए या प्रायर नॉलेज चाहिए. यह भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है. लिहाजा हर वो चीज जो आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, वो रिहर्सल के बगैर अंदर नहीं जाएगी आपके दिमाग में. और जो चीज आपको पहले पता है, वो थोड़े पढ़ने से आप पढ़ लेंगे. लिहाजा इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टीचर्स टू क्रिएट अ प्रायर नॉलेज बिफोर पुटिंग अ न्यू थिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमने बताना हो आपको कि मलेरिया क्या है, तो दिस इज समथिंग, मे बी समथिंग न्यू फॉर यू, मे बी आपने एफएससी में पढ़ा हो. मैं एक लेमैन मिसाल आपको देता हूं, टीचर्स को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिसाल देता हूं, सिंपल. अगर कोई टीचर ये पढ़ा रहा होगा आपको, आइए हम आपको मलेरिया के बारे में बताते हैं, एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्लाज्मोडियम, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम. अगर आप उसको ये बताएंगे, आपको कभी बुखार हुआ है? मुझे हुआ था. किस किस्म का बुखार था? कि जी मुझे सर्दी लगती थी. आपको सर्दी वाला बुखार हुआ? सर्दी, तेज सर्दी लगती थी, फिर उतर जाता था, फिर ऐसे कपकपी होती थी. याद है आपको कभी बचपन में हुआ था ऐसे? व्हाट वी आर डूइंग इट, प्रायर नॉलेज को इग्नाइट कर रहे हैं. और मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा कि प्रायर नॉलेज को इग्नाइट करने का फायदा क्या होता है. तो ये टीचर्स के लिए भी बहुत अहम है और स्टूडेंट्स के लिए भी अहम है. वट एवर यू आर रीडिंग, देयर हैज टू बी जनरेशन ऑफ सम प्रायर नॉलेज ऑफ इट. Because the moment you actually आप prior knowledge करते हैं, this actually provides that grease which will make it slippery to pass through the neck of it and go into the knot. अच्छा, next ये है कि रिहर्सल क्या होती है. मैं आपको यहाँ साथ साथ में आपको टिप बताते रहता हूँ. लिहाजा जब आप एक चैप्टर पढ़े ना एनाटॉमी का, तो आपने जब चैप्टर पढ़ लिया, खत्म करने के बाद उस चैप्टर को फिर दोबारा पढ़े. अब जब आप पढ़ेंगे तो कितनी देर में पढ़ लेंगे? अभी 15 मिनट पहले आपने वो पढ़ा था पैरा, 15 मिनट बाद दोबारा पढ़ेंगे तो कितनी देर में पढ़ लेंगे? जो आपने 1 घंटे में पढ़ा था, अब कितनी देर में पढ़ लेंगे? मे बी हाफ एन आवर. जब आप हाफ एन आवर में पढ़ लेना, एक दफा फिर पढ़ लें. अब आपको पढ़ लेंगे 10 मिनट में. अच्छा, अब पढ़ने के बाद चौथी दफा फिर पढ़ लें बगैर किताब के. अब आप कितनी देर में पढ़ लेंगे? 2 मिनट में. So this is what is rehearsal. Rehearsal at the time of study, this is what rehearsal is. And for teachers, teachers make it, they are part of their teaching strategy, that once they tell them something, they never tell something once in a lecture, depending upon the priority of the importance. The thing which is important should be described 5-6 times in a lecture, which is less important 4 times, less important 3 times. And students also don't postpone the rehearsal for tomorrow. Rehearsal has to be done at the time of the original study, and that is the time when it will get a grease and go into long term memory. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल के बड़ा आपको मजा आएगा. एक होती है मेंटेनेंस रिहर्सल, एक होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल. मेंटेनेंस रिहर्सल पता है क्या होती है? 0321 6801200. क्या नंबर है मेरा फोन का? 0321628000. नहीं पता ना क्यों हुआ भला? आपकी ऑडिटरी का कैपेसिटी नहीं है उसको संभालने की, हालांकि आप ज़हीन हैं. अच्छा, 0321 6801200.
हाँ नहीं, 6800 नहीं है भाई। अच्छा आप बताओ बेटा, ये क्या नंबर था? क्या नंबर था ये? क्या नंबर था? लाउडली। इस तरह की रिहर्सल का नाम है, एक्सक्यूज मी, इस तरह की रिहर्सल का नाम है मेंटेनेंस इस तरह की रिहर्सल का नाम है मेंटेनेंस रिहर्सल। There are 10 causes of pain in rhinitis appendicitis. Ectopic pregnancy. This is maintenance rehearsal. Maintenance rehearsal. It's called maintenance rehearsal, right? Please remember, maintenance rehearsal just ऐसे होती है जैसे आपने किसी मिठाई के ऊपर वर्क लगाया हुआ होता है। The moment you start eating वो खत्म हो जाता है। और ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी कि मेंटेनेंस रिहर्सल लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं घुसा सकती। ये बाहर वाइवे के वक्त बाहर किताब लेके आप मेंटेनेंस रिहर्सल ऐसे कर सकते हैं, बट जो रियल रिहर्सल है उसे कहते हैं एलैबोरेटिव रिहर्सल। और इन दोनों में आपको मैं फर्क बताता हूं। आपने, अब मैं मिसाल, इनको एफएससी का मुझे अब याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोहर मॉडल तो याद होगा आपको। अच्छा, बोहर मॉडल को याद करने का एक तरीका है कि खुलासे के अंदर 3 लाइनें बोहर मॉडल की लिखी हो और आपको याद करते रहें। मैं आपको एक मेडिकल प्रोफेशन से बताऊं। फॉर एग्जांपल, किसी शख्स के पेट में दर्द हो रहा है राइट साइड पर, उसी से कहते हैं राइट इलियक फोसा, पेन राइट इलियक फोसा। तो ये मुमकिन है कि आपको बताएं कि 12 कॉजेज हैं पेन राइट इलियक फोसा में, और आप उसको याद कर लें। अपेंडिसाइटिस, यूरिटेरिक कॉलिक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इल्यूसिकल ट्यूबरकुलोसिस, सॉस एब्सेस, हर्पीज जोस्टर एंड स्पाइनल प्रॉब्लम, इस तरह 8-10 आप याद कर लें। इट इज पॉसिबल, ठीक है। इस तरह की रिहर्सल को कहेंगे हम मेंटेनेंस रिहर्सल। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े जिसमें सारा कुछ बयान किया गया हो और उसके एंड में भी यही आपको 8 बातें याद हो, और जब आप रट्टा लगा के करें तब भी 8 ही बातें याद हो, लेकिन जो आपने पूरे प्रोसेस से गुजर के पढ़ा है, दैट विल रिजल्ट इन एलैबोरेटिव रिहर्सल, वेयर एज जो आपने पॉइंट्स याद किए हैं दैट विल रिजल्ट इन मेंटेनेंस रिहर्सल। इसीलिए हम मेडिकल कॉलेज के अंदर स्ट्रांगली इस बात को कंडेम करते हैं कि आप खुलासों वाली किताबें पढ़ें। एनाटॉमी की आपको किताबें मिलेंगी, इम्तिहान में पास करने वाली किताबें जिसमें सब पॉइंट्स में बुलेट्स में लिखा हुआ है, वो किताबें खरीदें, मगर उनको टेक्स्ट बुक के बाद पढ़ें। इफ यू हैव रेड योर एनाटॉमी फ्रॉम आरजे लास्ट, फ्रॉम स्नेल, फ्रॉम ग्रेज एनाटॉमी, फ्रॉम ग्रांट्स एनाटॉमी और फ्रॉम डायसेक्टर, केनिंगham's मैनुअल ऑफ डायसेक्टर, उसके बाद एक छोटी सी किताब पीबी 84 या वो है, आई डोंट नो, छोटी सी किताब जिसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपकी रिहर्सल जो है वो एलैबोरेटिव रिहर्सल होगी। समझ में आई बात? और अगर आपने सिर्फ पॉइंट्स याद करके स्टेज के अंदर नंबर ले लिए जल्दी से, व्हाट आर द 8 कॉजेज, व्हाट आर द 8 ब्रांचेस कम्स फ्रॉम दिस आर्टरी, नंबर उस वक्त आ जाएंगे। लेकिन जब आप 5 साल के बाद इमरजेंसी में एक स्टैब इंजरी के साथ एक वूंड आएगा, तो वहां वो बिल्कुल ये कहेगा, मुझे यहां स्टैब इंजरी हुई है, प्लीज बताएं 5 कौन सी आर्टरियां यहां से निकल रही थी, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट थे। उसमें आपने पिक करके कहना है कि ओ दिस इज द न्यूट्रेंट आर्टरी, दिस इज द फ्लानी। वो तब आएगी जब आपने एलैबोरेटिव रिहर्सल। आपको बहुत सीनियर कहेंगे, लेकिन वो जितने भी सीनियर है मुझसे ज्यादा सीनियर नहीं है। अब मेरी बात माने, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टडिंग फ्रॉम big textbooks. Maybe you have to read them once, and then the rest of your rehearsal will be maintenance from small books, but it has to be, thank you, but it has to be read from big books. इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी टेक्निक्स बताता हूं which will convert the maintenance rehearsal into elaborative rehearsal. आपको समझ में आ रहा है ना? बोर हो रहे हो ना? सच बताना। अच्छा, लेकिन मैं जब टीचर्स को पढ़ाता हूं वो कहते हैं बड़ा बोरिंग लेक्चर होता है आपका। ओके, एनीवेज, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। नोट्स अपने बनाएं, अगर आपने बनाने भी है ना, अपने नोट्स बनाएं। गो फ्रॉम द बुक एंड मेक योर ओन नोट्स, एंड दीज विल बी गुड इनफ फॉर यू। डोंट गिव इट टू योर जूनियर्स, उसकी अपनी कबर है। और दूसरा, 3 और टेक्निक्स हैं जिनसे आपकी रिहर्सल कन्वर्ट्स फ्रॉम मेंटेनेंस रिहर्सल टू एलैबोरेटिव रिहर्सल। गौर से देखना क्या है। सबसे पहले है
कि अच्छा सॉरी ये ऐसे बता दूं, जिस वक्त आपकी डीप प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तो आपके जहन में नॉलेज इस तरीके से होता है, इसको टेक्निकली कहते हैं कॉबवेब्स, मकड़ी के जाले की तरह होता है। नॉलेज आपके अंदर मौजूद होता है मगर वो गुड्डा मुंडा गुड मुंड हुआ होता है, क्योंकि आपने याद करना होता है 8 कॉजेज 15 कॉजेज 4 कॉजेज, वो कोई मीनिंग आपके लिए नहीं होता, इट्स ओनली अ मेमोरी। लेकिन जिस वक्त आपने एलैबोरेटिव रिहर्सल की होती है तो आपके दिमाग में कॉबवेब्स बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। और उसकी 3 टेक्निक्स हैं, गौर से सुनिएगा। पहली टेक्निक है ग्रुप स्टडी। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर रीडिंग एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाय एनीथिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो खामोशी से उसने कहा अच्छा आप भी पढ़ो, आप दोनों रूममेट हैं तीनों, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पढ़ते तुमने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ओ मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने। ग्रुप स्टडी एक्चुअली कन्वर्ट्स अ मेंटेनेंस रिहर्सल इनटू अ एलैबोरेटिव रिहर्सल। सेकंड ये है पीयर असिस्टेड लर्निंग। ये सर की स्पेशलिटी है, इनका जो एमसीपीएस एचपी का वो था तो प्रेजेंटेशन वो इसी पर उन्होंने, सर ने रिसर्च भी की थी, पेपर भी लिखा था। पीयर असिस्टेड लर्निंग का मतलब होता है कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को पढ़ाए, थर्ड ईयर सेकंड ईयर को पढ़ाए। मैम इसका हमने कुछ करना है, हमने पहले भी सोचा था, हमने कोई ना कोई सेशन रखने हैं जिसमें पीयर असिस्टेड लर्निंग हो, डीएमई के सेशंस में। और तीसरा तरीका इसका है टीचिंग। आप जब छुट्टियों पे घर जाए ना तो मामा को कहें मामा आए मैं आपको ना अपर लिम पढ़ाती हूं। पता है अपर लिम में बोन होती है, फलाना होता है। बट गुड थिंग इज टीच योर फ्रेंड्स, टीच योर जूनियर्स, टीच देम। टीचिंग एक्चुअली क्लैरिफाइज। तो ये 3 तरीके हैं जो कि मेंटेनेंस रिहर्सल को एलैबोरेटिव रिहर्सल में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ओके। और चौथी जो तीसरी चीज है ना वो बड़ी जरूरी है, और ये ज़हीन स्टूडेंट कर लेते हैं, ये नॉलेज को ना चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारा ब्रेन चंक्स को करता है। अगर यानी हमारे सर ने 5 डब्बे उठाने हैं, 5 डब्बे, इस पे डिपेंड नहीं करता कि डब्बा कितना बड़ा है, जितना मर्जी डब्बा हो लेकिन 5 हो। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो चीजों को एक एक डब्बे में डाल के 50 चीजों के 5 डब्बे बना लेते हैं। बिकॉज आवर ब्रेन, जैसे होता है ना जहाज में, बड़े जहाजों में कहते हैं यू कैन टेक ओनली 3 आइटम्स, इररिस्पेक्टिव कि उसका वेट कितना है। तो चंकिंग इज एक्चुअली डिवाइडिंग इनटू स्मॉल थिंग्स नो मैटर हाउ बिग इट इज। मैं इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं, अलर्ट रहना, सारे अलर्ट रहना। ये एक नंबर है, या आपने सब अलर्ट है? मोबाइल से तो नहीं कोई खेल रहा? ओके, ये 5 सेकंड में आपने याद करना है। 1, चुप चुप, किसको याद हुआ है? यस प्लीज। वेरी नाइस। मैं आपको ना अभी इन्होंने जो किया है ना वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप में से कितनों को याद नहीं हुआ? रेज योर हैंड्स। देखिए तकरीबन 95% को याद नहीं हुआ, इनको याद हो गया है। और जो मैं करने जा रहा हूं वो इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया। अब देखिए गौर से, अब मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। क्या नंबर है? जोर से, जोर से बेटा। 100%। क्या नंबर था बेटा? जोर से। Now you will always remember it, and that boy actually did the same. जब मैंने उनसे पूछा क्या है तो उन्होंने immediately इसको chunks में divide कर लिया। Now see this is one chunk actually, 5 on one side, 5 on the other side. Our mind will perceive it as one chunk. The second chunk is 1940. We all know, we have a prior knowledge of 1947, and we have a knowledge of 1965, and this is 201. So our brain has to remember it 1, 2, 3, 4, 5, 4 chunks, and still we have got a capacity of having 9 chunks अगर हम बहुत attention पूरी दें। इसके मुकाबले में just you look at it, they're all cobweb in our mind. So the intelligent students actually makes chunks, and there are a lot of techniques of making chunks. Attention मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़। Attention जो है थोड़ी इसको थोड़ी तवज्जो दीजिएगा सारी। Attention जो है ना
अटेंशन बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता. अटेंशन, ओके आई स्किप इट, डोंट वरी. बस अटेंशन का मतलब है तवज्जो, जब पढ़ना तवज्जो से पढ़ना. बिकॉज इट्स अ लिटिल ओके. सो इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम हियर टू हियर, if something has to go, it can only go if it is coupled with rehearsal, and rehearsal has to be elaborative rehearsal. It will stay here, it will stay here